चैप्टर 7 शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 75। वी लिमिटेड इशूड शेयर्स 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹500 ईच, यानी वी लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू किए 500 रुपए का एक, जिसमें एप्लीकेशन के वक्त 200 रुपीज, अलॉटमेंट में 200 प्लस 100 मीन्स 100 प्रीमियम, और कॉल में 100 रुपीज इज टू बी रिसीव्ड। टोटल फेस वैल्यू इज 500। टोटल फेस वैल्यू इज 500। प्रो रेटा अलॉटमेंट का केस है। 50,000 एप्लीकेंट्स आर रिजेक्टेड मीन्स आउटराइट रिजेक्शन। सो 50,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन का पैसा आएगा वो हम रिफंड करेंगे, इसलिए वो अमाउंट बैंक से रिटर्न किया जाएगा। 1,50,000 शेयर्स पे 1 लाख शेयर्स अलॉटेड और 50,000 एक्सेस है, तो 50,000 का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है, 50,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर allotment amount of this 1 lakh shares because it is a pro rata allotment. Pro rata allotment is done for 1,50,000 applications, 1 lakh shares allotted, 50,000 excess shares application amount is received and it will be retained by the company and utilized at the time of allotment due on this 1 lakh shares. और फाइनल कॉल इज नॉट रिसीव्ड ऑन 100 शेयर्स ऑफ बासु और उसके शेयर्स फोरफिट किए जा रहे हैं आफ्टर फाइनल कॉल। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 lakh shares into 200 4 crore rupees. Out of this application of 4 crore, 2 crore rupees will be transferred to equity share capital because 1 lakh shares and 200 rupees, 1 lakh allotted shares and 200 rupees. Equity share capital is 2 crore. On 50,000 shares, 200 rupees will be utilized for allotment. So to equity share allotment 1 crore rupees. And on this 50,000 shares, outright rejection. So 50,000 into 200, to bank 1 crore rupees. So out of 4 crore, 2 crore will be transferred to capital, 1 crore to allotment and 1 crore refunded through bank. After that, allotment due to equity share allotment to ESC to SPR, 1 lakh shares and 300 rupees per share. So 3 crore rupees is due for allotment, out of which 1 lakh shares into 200 is for equity share capital and 1 lakh share into 100, 1 crore rupees is for security premium reserve. आउट ऑफ 3 crore रुपीज, अब 3 करोड़ ड्यू हुए अलॉटमेंट में से, जिसके 1 करोड़ उसमें से मिल चुके ऑलरेडी। सो रिमेनिंग 2 crore विल बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 crore रुपीज. नाउ कॉल अमाउंट विल बी ड्यू फॉर 100 रुपीज ऑन 1 lakh शेयर. सो 1 crore रुपीज इज ड्यू फॉर कॉल, ES कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. जिसमें से 100 शेयर्स पे कॉल नहीं आएगा तो 99,900 शेयर्स एंड 100 रुपीज रिसीव्ड. सो बैंक टू इक्विटी शेयर कॉल 99,90,000 rupees. Now forfeiture of these 100 shares, forfeiture is made after final call, so full face value will be debited to equity share capital. 100 shares into 500 rupees, so equity share capital will be debited with 50,000. To share forfeiture and to equity share call, only call is not received. So not received में यहाँ पे सिर्फ call की amount 100 shares and 100 rupees, 10,000 will be credited to equity share call. Out of 50,000, if 10,000 is not received, 40,000 must have been received. So it will be credited to share forfeiture. Amount forfeited is 40,000. Now these shares are reissued at a price more than face value. At a price more than face value, reissue price is 60,000. 50,000 shares are reissued for 60,000. 50,000 के शेयर 60,000 में reissue हुए तो 10,000 रुपए will be transferred to security premium reserve because shares are reissued at a price more than face value. तो जब भी रीइश्यू की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा तब शेयर फोरफीचर अकाउंट नहीं आ सकता, बिकॉज टू फैक्ट्स साइमल्टेनियसली नॉट पॉसिबल. दैट रीइश्यू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू तो एसपीआर आएगा, एंड रीइश्यू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू देन सिक्योरिटी शेयर फोरफीचर विल बी यूटिलाइज्ड. नाउ हियर द केस इज रीइश्यू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू. 50,000 के शेयर 60 में रीइश्यू हुए, इसलिए कॉमन सेंस है यहाँ पे कि शेयर फोरफीचर यूज नहीं होगा. एंड दिस एंटायर अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीचर, it's a capital profit for the company, will be transferred to capital reserve by passing this entry share forfeiture to capital reserve 40,000. In next question, Yes Limited, question number 76. Application 50, allotment 10 and call amount is 40 by making total face value of 100 rupees. Again pro rata situation, 7,000 applicants allotted 7,000 shares, no excess means full allotment. And remaining 33,000 because total application received for 40,000 shares. Out of that 27,000 shares are to be allotted.
तो 7,000 को 7,000 अलॉट हुए, फुल अलॉटमेंट है. रिमेनिंग 33,000 विल बी अलॉटेड 20,000 शेयर्स. सो 13,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की अमाउंट होगी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट मनी एंड रिटेन एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के वक्त वो पैसे रखे जाएंगे ताकि अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो सके. A1 एक शेयर होल्डर है A1, उसने फुल अमाउंट पे कर दिया है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑन 600 शेयर्स. A1 हैज पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑन 600 शेयर्स. यानी उसने अलॉटमेंट के वक्त दोनों, उसने अलॉटमेंट के वक्त अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल एडवांस में भर दिया है. और A2 ने नथिंग पेड आफ्टर एप्लीकेशन. उसने एप्लीकेशन के बाद प्रोरेटा के स्टेज का है वो. A1 जो है वो फुल अलॉटमेंट की कैटेगरी का है, फर्स्ट कैटेगरी का है, और उसने अलॉटमेंट के वक्त कॉल का पैसा एडवांस में भर दिया है. दूसरा शेयर होल्डर A2 जो प्रोरेटा स्टेज का है, उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ भरा नहीं है, उसके 200 शेयर्स है और ये 200 शेयर्स का फोरफीचर हो रहा है और रीइश्यू प्राइस है 105. नेसेसरी एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड. फर्स्ट इज बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. तो 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है इंटू 50 रुपीज पर शेयर. 50 रुपीज इज टू बी कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन. सो 20 लाख रुपीज रिसीव्ड एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन. 20 लाख में से सबसे पहले 27,000 शेयर्स पे 50 रुपीज के हिसाब से 13,50,000, 13,50,000 विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है यहाँ पे 13,000 शेयर की, उस पे जो एप्लीकेशन का पैसा है 50 रुपीज के हिसाब से, हमारे पास 6,50,000 एक्स्ट्रा अमाउंट है. बट सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पे. एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी विल बी यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट एंड इफ सरप्लस इज अवेलेबल इट विल बी यूटिलाइज फॉर कॉल ऑल्सो. तो एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट में से पहले अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे और फिर भी अगर बैलेंस बच रहा है हमारे पास तो उसको कॉल के लिए यूटिलाइज करना है. तो वी नीड टू चेक एट दिस पॉइंट कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट कितना है और कितना अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, जिसके लिए हमने यहाँ पे वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है कि एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अपने पास 13,000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा थे उस पे 50 रुपए के हिसाब से 6,50,000 हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा है एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन. क्योंकि 13,50,000 यूज हुआ है इसलिए 6,50,000 एक्स्ट्रा अमाउंट है. तो अब हमें चेक करना है कि कितना ड्यू होगा अलॉटमेंट के लिए. अब अलॉटेड शेयर्स, ये जो प्रोरेटा की कैटेगरी में अलॉटेड शेयर्स है वो 20,000 है और अलॉटमेंट मनी पर शेयर 10 रुपीज है. 20,000 शेयर्स पे 10 रुपीज, 2 लाख रुपीज इज ड्यू फॉर अलॉटमेंट. ऑन प्रोरेटा जो शेयर्स है, प्रोरेटा कैटेगरी में जो अलॉटेड शेयर्स है उस पे अलॉटमेंट मनी 2 लाख रुपए ड्यू हो रहा है और हमारे पास 6,50,000 रुपए पड़े हैं. तो 6,50,000 में से 2 लाख अगर हम अलॉटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं देन बैलेंस लेफ्ट इज 4,50,000. तो 4,50,000 विल बी यूटिलाइज फॉर कॉल. यानी यहाँ हमारे पास इतना एक्स्ट्रा फंड है 6,50,000, जिसमें से 2 लाख रुपए का पहले अलॉटमेंट कवर हो रहा है और 4,50,000 रुपए विल बी ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस. इसलिए यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो 20 लाख है उसमें से 13,50,000 फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. देन फ्रॉम दिस 6,50,000 एक्सेस अमाउंट 2 लाख विल बी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड 4,50,000 विल बी ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस. उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 27,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 2,70,000 इज ड्यू अमाउंट फॉर अलॉटमेंट. 270 में से ऑलरेडी 2 लाख का अलॉटमेंट मिल चुका है. सो 70,000 रुपीज पे ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट. अब यहां पे समझना है 70,000 का अलॉटमेंट, क्योंकि 270 में से 2 लाख ऑलरेडी मिल चुका है और कॉल्स इन एडवांस. अब यहाँ पे अलॉटमेंट के स्टेज पे एक शेयर होल्डर एडवांस में पैसा भर रहा है ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 600 शेयर्स. 600 शेयर्स पे 40 रुपीज का कॉल यानी 24,000 इज कॉल्स इन एडवांस. अलॉटमेंट का 70,000 मिल रहा है क्योंकि 270 ड्यू हुआ है, जिसमें से 2 लाख मिल चुका है इसलिए 70 रिसीव्ड. और 600 शेयर्स पे 40 रुपीज is calls in advance. So total amount received at the time of call is 94,000. So bank account debited with 94,000. After this equity share call due होगा जिसकी अमाउंट 27,000 शेयर्स पे 40 रुपीज, 10,80,000 रुपए 10,80,000 विल बी ड्यू और रिसीव करेंगे इक्विटी शेयर कॉल में. अब यहाँ पे समझना है हमें कि किस तरह से अमाउंट आएगा आउट ऑफ दिस 10,80,000. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 4,50,000 प्लस 24,000 ये जो कॉल्स इन एडवांस है, जो हमें एप्लीकेशन के वक्त कॉल्स इन एडवांस मिला था 4,50,000 और जो अलॉटमेंट के वक्त कॉल्स इन एडवांस मिला था 24,000. 450 प्लस 24 विल नॉट गोइंग टू बी रियलाइज अगेन क्योंकि वो मिल चुका है ऑलरेडी. इसलिए 450 प्लस 24
टोटल 4,74,000 विल बी डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब हमें कॉल्स इन एरियर्स के लिए निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल के लिए सबसे पहले ड्यू अमाउंट 27,000 में से 40 रुपीज 10,80,000 इज ड्यू फॉर कॉल, जिसमें से 4,50,000 इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। सो कॉल्स इन एडवांस है 4,50,000 और नॉट रिसीव्ड फ्रॉम दिस शेयर होल्डर। तो रिसीव्ड जो शेयर होल्डर के पास से जो रिसीव नहीं हुआ उसके लिए कैलकुलेशन हमने कॉल में अमाउंट 4,50,000 ट्रांसफर किया था, एप्लीकेशन में से 4,50,000 कॉल में ट्रांसफर किया था और 4,50,000 ऑन दिस 20,000 शेयर्स। 4,50,000 क्योंकि प्रोरेटा में ही ये आगे अमाउंट कॉल्स इन एडवांस में गई है और प्रोरेटा में 20,000 शेयर अलॉटेड है। 4,50,000 कॉल एडवांस में मिल चुका है 20,000 शेयर पे, यानी पर शेयर 22 रुपए 50 पैसे 22.5 ऑलरेडी रिसीव्ड है। तो नॉट रिसीव्ड फ्रॉम A2 का कैलकुलेशन यहाँ पे करना है कि उसकी ड्यू अमाउंट कितनी है, क्योंकि उसके शेयर 200 है, 200 शेयर है, 200 शेयर पे 40 रुपए का कॉल ड्यू हो रहा है 8,000 और रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन के वक्त पर शेयर कॉल अमाउंट 22 रुपीज 50 पैसे मिल चुका है। इसलिए 200 शेयर पे 22.5 4,500 रिसीव्ड है, 8,000 में से 4,500 रिसीव्ड है, इसलिए 3,500 इज नॉट रिसीव्ड। तो 3,500 जो रिसीव नहीं हुआ है वो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स में आएगा। तो टोटल 10,80,000 रुपए के कॉल में से जो कॉल ड्यू हुआ है उसमें से कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा 4,74,000 क्योंकि 4,50,000 एप्लीकेशन के वक्त एडवांस आया है और 24 अलॉटमेंट के स्टेज पे एडवांस आया है, इसलिए टोटल 474 डेबिट होगा यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस में। और जो एरियर्स में जो A2 के पास से नहीं आया है पैसा 8,000 में से 4,500 इज रिसीव्ड, सो 3,500 इज नॉट रिसीव्ड, ये यहाँ पे डेबिट होगा। तब जाके हमें अमाउंट मिलेगी कि जो अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कॉल एंड दैट मिसिंग अमाउंट इज 6,02,500 6,02,500। इसके बाद फोरफीचर का स्टेज आएगा। तो फोरफीचर करना है ये 200 शेयर का इक्विटी शेयर कैपिटल 2 शेयर फोरफीचर 2 कॉल्स इन एरियर्स, टोटल शेयर्स 200, फोरफीचर आफ्टर फाइनल कॉल यानी फुल फेस वैल्यू 100 रुपए में यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा 20,000 से, जिसमें कॉल्स इन एरियर्स जो नहीं मिला है वो 3,500, इसलिए रिसीव्ड अमाउंट इज 16,500। नाउ दिस फोरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ प्राइस ऑफ 105 मींस मोर देन फेस वैल्यू। नाउ मोर देन फेस वैल्यू, सो नथिंग विल बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम शेयर फोरफीचर, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड to equity share capital to security premium reserve out of 105 received on 200 shares total 21,000, 100 rupees will be transferred to equity share capital, 200 shares and 100 rupees 20,000 to equity share capital and 200 shares 5 rupees security premium reserve 1,000 will be credited to SPR। अब 16,500 forfeited amount है और री इश्यू में एक भी रुपया यूज नहीं हुआ है, so this entire amount is treated as capital profit and will be transferred to capital reserve by passing this entry share forfeiture to capital reserve। नेक्स्ट क्वेश्चन रत्नाकर लिमिटेड में अगेन प्रोरेटा का केस है, इसमें अप्लाइड अलॉटेड इन एक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन इज ऑफ 2 रुपीज, अलॉटमेंट इज 3 + 2 रुपीज, प्रीमियम इज देयर, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज, टोटल फीस वैल्यू 10। फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन 6,000 and allotted nothing is allotted, so 6,000 is excess and amount is refunded to through bank outright rejection। नेक्स्ट इज 24,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स अलॉट हुए, यानी यहाँ 4,000 एक्स्ट्रा है एप्लीकेशन एंड दैट अमाउंट विल बी रिटेन फॉर अलॉटमेंट के लिए रखा जाएगा। रमेश फर्स्ट शेयर होल्डर 400 शेयर्स पे नथिंग पेड आफ्टर एप्लीकेशन एंड शेयर्स फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। दूसरा शेयर होल्डर है मोहन, ही शेयर होल्डिंग इज 400 और उसने दोनों कॉल नहीं भरे एंड ऑब्वियसली हिज शेयर्स विल बी फोरफिटेड आफ्टर 2 calls फाइनल कॉल। And out of this 800 shares, out of this 1,000 shares, 400 plus 600, 800 shares are reissued at ₹9, in which all shares of Ramesh are included। तो नॉर्मल प्रोसीजर है एंट्री पास करते पहले। फर्स्ट एंट्री इज फॉर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 30,000 shares, so bank to equity share application 30,000 into 2 rupees 60,000। out of this 60,000 first of all transfer to equity share capital, allotted shares 20,000 into 2 rupees, equity share capital is 40,000। now equity share allotment में ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थे 4,000 4,000 shares and 2 rupees per share, 8,000 will be transferred to equity share allotment। और जो 6,000 में आउटराइट रिजेक्शन है जिसका पैसा हमें बैंक से रिफंड करना है, तो 6,000 into 2 rupees 12,000 will be transferred to bank।
After that, allotment is due on 20,000 shares and 5 rupees is total amount due. So 20,000 into 5, equity share allotment will be debited with 1 lakh rupees. From that 1 lakh, 60,000 is of equity share capital because 20,000 shares and 3 rupees face value. So 60,000 is of equity share capital and 20,000 shares into 2 rupees of premium. So 40,000 is security premium reserve. Now important is amount received on this allotment, bank to equity share allotment. उसके लिए नेसेसरी वर्किंग करना होगा हमें, क्योंकि ये जो 400 शेयर्स है रमेश के, वो 400 शेयर्स पे नथिंग इज रिसीव्ड आफ्टर एप्लीकेशन, तो उसके लिए ये वर्किंग नोट है, यहाँ पे वर्किंग नोट प्रेजेंट किया है. तो ड्यू अमाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज 20,000 शेयर्स एंड 5 रुपीज, 1 लाख रुपीज इज ड्यू, जिसमें से एप्लीकेशन के वक्त हमें मिल गया है ऑलरेडी, एप्लीकेशन के वक्त हमें मिल गया 8,000, तो 8,000 माइनस होगा 1 लाख में से, और जो रिसीव नहीं हुआ है रमेश के पास से वो माइनस होगा, जिसके लिए एक नोट बनाएंगे, व्हाट अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश. तो उसका एप्लीकेशन अलॉटमेंट और एक्सेस की बात करें तो यहाँ प्रोरेटा का एक ही स्लैब है, 24,000 की एप्लीकेशन को 20,000 शेयर अलॉट हुए, यानी 6:5:1. 6 is applied, 5 allotted, 1 excess, and Ramesh is a holder of 400 shares, means allotted shares is 400, तो his applied shares must be 480. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया गया यहाँ पे 400 into 6/5, तो 480 is applied share और उसमें एक्सेस शेयर है 80, तो इसके 400 शेयर्स पे ड्यू अमाउंट होगा 5 रुपए है अलॉटमेंट का स्टेज, 3 + 2, 3 एप्लीकेशन एंड 2 अलॉट, 3 इज फेस वैल्यू एंड 2 इज प्रीमियम, सो 5 रुपीज इज ड्यू, 400 शेयर्स 5 रुपीज ड्यू 2,000 एंड रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो उसकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी 80 शेयर्स की, और 80 शेयर्स पे एप्लीकेशन पर शेयर 2 रुपीज, तो रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज 80 into 2, 160. So what is not received from Ramesh is 1840. This 1840 is subtracted from this 1 lakh rupees. तो 1 लाख रुपए ड्यू हुआ है अलॉटमेंट, उसमें से 8,000 एप्लीकेशन में मिल गया है, और 1840 रमेश के पास से रिसीव नहीं होगा अलॉटमेंट में, तो रिसीव्ड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट इज 90,160. सो यहाँ पे बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट आएगी 90,160. इसके लिए ये नोट है. इसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 20,000 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल ड्यू होगा 60,000. ना फर्स्ट कॉल रिसीव करते वक्त, अब रमेश के 400 शेयर पे तो नहीं आया है फर्स्ट कॉल, उसके साथ साथ मोहन के 600 शेयर्स पे भी नहीं आया, तो रमेश और मोहन का टोटल शेयर है 1,000 शेयर्स हटा दे अगर 20 में से, तो 19,000 एंड 3 रुपीज इज रिसीव्ड, तो बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट इज 57,000. नाउ आफ्टर फर्स्ट कॉल इमीडिएटली रमेश के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, तो उसके फॉरफिचर की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर फॉरफिचर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. अमाउंट हमें पहले सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में भरना होता है, तो 400 शेयर्स एंड जो स्टेज है फॉरफिचर का वो है आफ्टर फर्स्ट कॉल, सो 2 + 3 + 3 called up value at the stage of first call is 8 rupees, 2 on application, 3 on allot and 3 on first call, so total amount called till the stage of first call is 8 rupees, so 8 rupees will be debited to equity share capital, 400 into 8, 3,200. Now what is not received, so first call is not received, 400 share into 3 rupees, 1,200 is not received, और allotment जो उसने नहीं भरा है उसकी हमने वर्किंग नोट बनाई यहाँ पे 1840, allotment is not received, तो वो भी क्रेडिट होगा यहाँ पे. अब खास ध्यान ये रखना है कि नॉट रिसीव्ड में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो डेबिट होता है, फॉरफिचर की एंट्री में अगर नॉट रिसीव्ड में कोई किसी स्टेज पे एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो तो डेबिट करना है. तो प्रीमियम अलॉटमेंट में था 2 रुपीज, तो शेयर से 400 एंड 2 रुपीज इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सो 800 विल बी डेबिटेड टू एसपीआर. ये एसपीआर डेबिट करते वक्त कोई भी क्वेश्चन हो फॉरफिचर की एंट्री में, एसपीआर डेबिट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसकी जो नॉट रिसीव की अमाउंट है उससे ज्यादा ही एसपीआर नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे अमाउंट होती 700, तो यहाँ पे एसपीआर में 700 ही आता. हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि 700 नॉट रिसीव्ड अमाउंट है जिसमें से 800 हमें प्रीमियम के नहीं मिले. ऑब्वियसली अगर प्रीमियम के नहीं मिले तो वो इतनी अमाउंट होगी या तो उससे कम होगी. इसलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट यहाँ पे 1840 है जो नॉट रिसीव्ड है, और नॉट रिसीव्ड में प्रीमियम की अमाउंट 800 है, इसलिए वो अमाउंट लेस देन 1840 है, इसलिए यहाँ पे एंटायरली डेबिट करेंगे. अगर ये अमाउंट ज्यादा होती यहाँ पे, यानी ईएस अलॉटमेंट में यहाँ पे 700 होते तो हम यहाँ पे 700 ही डेबिट कर सकते हैं. यानी कभी भी एसपीआर की अमाउंट
उस स्टेज की नॉट रिसीव्ड अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उतनी अमाउंट ही कैंसिल हो रही है। इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 800 रुपीज, सो द बैलेंस लेफ्ट इज फॉर शेयर फॉरफीचर एंड अमाउंट इज 960। इसके बाद री इश्यू का प्रोसीजर, इसके बाद यहाँ पे फाइनल कॉल ड्यू हो रहा है, तो फाइनल कॉल पहले 19,600 शेयर्स पे, क्योंकि 400 शेयर ऑलरेडी फॉरफिट हो गए, इसलिए अब 20,000 शेयर्स थे जिसमें से 400 फॉरफिट हो गए, तो 19,600 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से फाइनल कॉल ड्यू होगा 39,200, और 19,000 पे 2 रुपीज रिसीव होगा, क्योंकि 600 शेयर पे मोहन के 600 शेयर पे फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिला है, इसलिए फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर्स कम हो जाएंगे, तो बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 38,000। उसके बाद मोहन के शेयर का फॉरफीचर होगा जो कि 600 शेयर है इंटू 10 रुपीज, बिकॉज फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर है, इसलिए फुल फेस वैल्यू 10 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा। जो नहीं मिला है वो दो अमाउंट ES फर्स्ट कॉल एंड ES फाइनल कॉल 3 रुपीज एंड 2 रुपीज, सो 1800 and 1200 respectively credited to ES first call and ES final call. So what is amount forfeited on Mohan 600 shares is 3,000 rupees. 3,000 रुपए जो मिसिंग अमाउंट है आउट ऑफ 6,000 माइनस 1800 माइनस 1200, 3,000 इज द अमाउंट फॉरफिटेड। इसके बाद री इश्यू की बात हो रही है, तो री इश्यू के लिए जो एंट्री पास करनी है वो है बैंक शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें 800 शेयर री इश्यू हुए, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 8,000 शेयर और 9 रुपीज की री इश्यू प्राइस है। 800 शेयर था री इश्यूड एट 9 रुपीज, सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 7,200 से। इसलिए डिस्काउंट गिवन ऑन री इश्यू, डिस्काउंट गिवन ऑन री इश्यू of this 800 share is 1 rupees, so total 800 will be debited to share forfeiture account. Now important point, what will be transferred to share forfeiture to capital reserve. forfeiture से capital reserve में कितना ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी होगी। अब ये जो री इश्यू हुए 800 शेयर, उसमें रमेश के सारे शेयर इंक्लूडेड है 400 के 400, और यहाँ पे दो फॉरफीचर की सेपरेट एंट्री है, ये रमेश की एंट्री और ये मोहन की एंट्री। तो रमेश के 400 शेयर पे 960 फॉरफिटेड अमाउंट है, तो रमेश के 400 शेयर पे फॉरफिटेड अमाउंट 960, मोहन के 600 शेयर पे 3,000 फॉरफिटेड और उसमें से 400 री इश्यू हो रहे हैं, यानी 600 पे 3,000 तो 400 पे उसकी फॉरफिटेड अमाउंट 2,000, यानी टोटल अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इश्यूड शेयर्स 2,960, यानी जो 800 शेयर री इश्यू हो रहे हैं उस पे फॉरफिटेड अमाउंट है 2,960, और हमने डिस्काउंट दिया है 800 रुपए का, तो 2,960 में से अगर 800 का डिस्काउंट दिया है तो बैलेंस लेफ्ट and it's a capital profit, amount is 2,160 and it will be transferred to capital reserve, share forfeiture to capital reserve. इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इसके लिए बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट, उसके दो हेड्स इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड असेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 सब्सिडरी हेड, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 2 कंपोनेंट, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, और यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल इज नॉट गिवन, इश्यूड कैपिटल इज 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 2 लाख रुपीज इश्यूड कैपिटल। अब जरा क्वेश्चन की फैक्ट चेक करते हैं। टोटल 1,000 शेयर्स जो फॉरफिट हुए थे उसमें से 800 शेयर्स ऑलरेडी रीइश्यू हो चुके हैं, यानी अब नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 19,800 है। पहले 20,000 इश्यू हुए थे, उसमें से फर्स्ट स्टेज में 400 कैंसिल हुए, फॉरफिट हुए, आफ्टर फर्स्ट कॉल, आफ्टर फाइनल कॉल 600 फॉरफिट हुए, यानी शेयर्स घट के 19,000 हो गए। उसके बाद 800 री इश्यू हो गए, यानी अब जो शेयर्स है वो है 19,800। तो 19,800 शेयर्स जो फुल्ली पेड है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड इंटू 10 रुपीज 1,98,000 अमाउंट आएगा। जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड है वो कैटेगरी में एक भी शेयर नहीं है। और इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब इसको जरा समझना है, 960 और 3,000 टोटल हमने 3,960 फॉरफिट किया है, जिसमें से 800 यूज किया और 2,160 ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल रिजर्व में, यानी आउट ऑफ 3,960 2,960 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूटिलाइज हो चुका है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट उतना रिड्यूस हो चुका है, यानी अब जो बचा है शेयर फॉरफीचर वो है 1,000 रुपीज, और वो 1,000 रुपीज है जो 200 शेयर री इश्यू नहीं हुए मोहन के, उसका ही 1,000 रुपीज है और उसको रिटेन किया जाता है। इसलिए जो भी बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ऑन शेयर्स विच आर नॉट री इश्यूड, दैट अमाउंट इज एडेड टू सब्सक्राइब कैपिटल। तो इसलिए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में 1,98,000, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड में डैश, और बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर 1,000। सो सब्सक्राइब कैपिटल का फाइनल अमाउंट आएगा 1,99,000। तो यहाँ शेयर कैपिटल में नोट 1 के हिसाब से 1,99,000 का अमाउंट लिखेंगे।
उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। अब कैपिटल रिजर्व में 2160 ट्रांसफर हो चुका है ऑलरेडी, कैपिटल रिजर्व में 2160 ट्रांसफर है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो 39,200, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 का जो क्रेडिट हुआ था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 वाज क्रेडिटेड, उसमें से फोरफीचर की एंट्री में 800 डेबिट हो चुका है। 40,000 क्रेडिट हुआ था और 800 डेबिट हो चुका है, इसलिए उसकी जो नेट अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वो 39,200 है। और कैपिटल रिजर्व की अमाउंट है 2160। एसपीआर और सीआर इन दोनों को ऐड करने पे अमाउंट आएगी 41,360 और उसको भी हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे नोट 2 से रिजर्व एंड सरप्लस में 41,360। इसलिए टोटल अमाउंट आएगा शेयर होल्डर्स फंड का वो 2,40,360, 2,40,360, इसमें से 1,99,000 सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट है, शेयर कैपिटल का अमाउंट है, एंड 41,360 इज द अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें कैपिटल रिजर्व 2160 एंड एसपीआर 39,800, टोटल 41,360, इसलिए शेयर होल्डर्स फंड की अमाउंट 2,40,360। एनसीएल और सीएल का कोई अमाउंट नहीं है, इसलिए टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 2,40,360। तो हमें दूसरा जो पार्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसकी अमाउंट यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ पे ये नोट बनाई है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें बैंक से जितनी एंट्री हुई है वो अमाउंट को एड अप करना है। पहली अमाउंट में 60,000 आया, फिर ये अलॉटमेंट के स्टेज पे 90,160 रिसीव हुआ, एप्लीकेशन का 60,000 रिसीव हुआ, उसके बाद ये 12,000 रिफंड हुआ तो 12,000 माइनस, देन 90,160 रिसीव्ड एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट, तो वो ऐड हुआ। उसके बाद फर्स्ट कॉल का 57,000 प्लस होगा और उसके बाद फाइनल कॉल का 38,000 प्लस हुआ है और री इश्यू की एंट्री का 7,200 प्लस करने पे यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 2,40,360। इसलिए यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और बैलेंस शीट का टोटल भी आएगा 2,40,360। उसके बाद एक ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन XYZ लिमिटेड, जिसमें 2,000 शेयर इशू किए जा रहे हैं और 10 का एक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ हर एक स्टेज पे प्रीमियम है। एप्लीकेशन में 5+1, अलॉटमेंट 1+1, फर्स्ट कॉल 2+1 एंड फाइनल कॉल 2+1, इसलिए 4 रुपए का प्रीमियम है। 40% प्रीमियम का रेट है, 10 रुपीज की फेस वैल्यू, और ये 4 रुपए का प्रीमियम इवनली स्प्रेड है, हर एक स्टेज पे 1-1 रुपया कॉल किया जा रहा है। प्रोरेटा अलॉटमेंट की सिचुएशन है, 2400 शेयर्स में 2000 शेयर्स अलॉट हो रहा है, यानी यहाँ पे 400 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा रिटेन किया जाएगा अलॉटमेंट के लिए। 600 शेयर का आउटराइट रिजेक्शन है, इसलिए वो 600 शेयर पे पैसे बैंक थ्रू हम रिफंड करेंगे। तो अप्लाइड शेयर्स 3000 है और अलॉटेड शेयर्स 2000 है। एक्स करके जो एक शेयर होल्डर है उसके अलॉटेड शेयर्स दिए गए, अलॉटेड शेयर्स 40 है और वो फेल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और उसके शेयर का फोरफीचर हो रहा है आफ्टर फर्स्ट कॉल। एक्स शेयर होल्डर ने 40 शेयर जो उसको अलॉट हुए हैं उस पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हो रहे हैं। वाई? जिसने 72 शेयर्स अप्लाई किए थे, अब 72 उसके अप्लाइड शेयर्स है, तो अप्लाइड शेयर 72 थे, उसने दोनों कॉल नहीं भरे, तो उसके दोनों कॉल के बाद उसका फोरफीचर है। और री इशू किए जा रहे हैं 80 शेयर्स, जिसमें सारे वाई के सारे शेयर इंक्लूडेड है। री इशू हो रहे हैं टोटल 80 शेयर्स, जिसमें वाई के ऑल शेयर्स आर इंक्लूडेड एट ₹9 पर शेयर। नेसेसरी एंट्री पास करनी है। फर्स्ट एंट्री आएगी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 3000 शेयर की एप्लीकेशन आई है और पर शेयर ₹6 रिसीव, इसलिए बैंक टू ईएस एप्लीकेशन 18,000। आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ 18,000, फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 शेयर्स पे कैपिटल की अमाउंट ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000, फिर वो 2000 शेयर पे ₹1 का सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 2000 विल बी क्रेडिटेड टू एसपीआर। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है, तो जो 400 प्रोरेटा के स्टेज पे जो 400 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी, वो 400 शेयर पे एप्लीकेशन का ₹6 यानी टोटल ₹2400 ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। और जो आउटराइट रिजेक्शन के 600 शेयर का केस है उस पे पैसे रिफंड किए जाएंगे 600 into 6, सो अमाउंट विल बी रिफंडेड टू बैंक 3600। आफ्टर दैट अलॉटमेंट इज ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, जिसमें अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है 2000 शेयर पे ₹1 की फेस वैल्यू और ₹1 का प्रीमियम, टोटल ₹4000 ड्यू हुए हैं, जिसमें 2000 कैपिटल और 2000 का प्रीमियम है। फिर अलॉटमेंट रिसीव करना है तो उसके लिए एंट्री है बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, फोर्थ एंट्री। यहां पे भी ये स्टार एंट्री थी 4 एंट्री,
उसके लिए ये वर्किंग नोट बनानी पड़े, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, और उसमें ऑलरेडी ड्यू अमाउंट, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द डिफॉल्टर। सेम फॉर्मेट में यहाँ पे हमने यहाँ पे नोट तैयार की है। सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट की नोट, जिसमें ड्यू अमाउंट, तो ड्यू अमाउंट है 2000 शेयर पे, 2 रुपए के हिसाब से 4000 ड्यू अमाउंट है। जिसमें से रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के वक्त अलॉटमेंट के लिए 2400 मिल चुके हैं जो माइनस होंगे, और नॉट रिसीव्ड फ्रॉम दैट डिफॉल्टर एक्स के पास से जो नहीं मिला है उसकी अमाउंट, जिसके लिए ये नोट यहाँ पे। अब प्रोरेटा अलॉटमेंट में जो स्केल है प्रोरेटा का वो है 6:5, 2400 अप्लाइड शेयर है और 2000 अलॉटेड शेयर है, इसलिए 6:5:1 का रेशियो यहाँ पे। तो 651 और उसके अलॉटेड शेयर 40 है, तो उसके अप्लाइड शेयर्स 48 होंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 40 इंटू 6/5 करने पे 48 उसके अप्लाइड शेयर्स रहे होंगे, 8 शेयर उसके एक्सेस है। तो पहले 40 शेयर्स पे 2 रुपीज ड्यू होगा 80 रुपीज, 40 शेयर्स एंड 2 रुपीज 80 रुपीज ड्यू होगा। नाउ रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, उसका 8 शेयर का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का अमाउंट आया था 8 रुपीज, एंड पर शेयर उसकी अमाउंट है 6 एप्लीकेशन की, तो 8 इंटू 6 48 ऑलरेडी रिसीव्ड, सो नॉट रिसीव्ड अमाउंट इज 32। उसकी नॉट रिसीव्ड अमाउंट है 32, तो इसको ये नोट में हम लिखेंगे 4000 ड्यू हुआ है, 2400 मिल चुका है और 32 अभी नहीं मिला है डिफॉल्टर के पास से, इसलिए 1568 इज अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट फॉर अलॉटमेंट इज 1568, इसलिए बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट आएगा 1568। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर 2000 शेयर पे 2 रुपए का फेस वैल्यू और 1 रुपए का प्रीमियम, इसलिए टोटल 4000 कैपिटल में और 1000 एसपीआर में जाएगा और ड्यू अमाउंट होगी 6000। अब यहाँ पे 2 अलग अलग डिफॉल्टर पैसे नहीं भर रहे फर्स्ट कॉल के, एक्स जिसके 40 शेयर है और वाई जिसके 72 अप्लाइड है। अब यहाँ पे एक ही प्रोरेटा का स्लैब है 6:5, और अगर उसके 72 अप्लाइड है तो 5 के हिसाब से उसके 60 शेयर्स अलॉटेड होंगे। 72 अप्लाइड है, 6 के लिए 72, तो 5 के लिए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इजी टू अंडरस्टैंड। तो अप्लाइड शेयर 72 है, तो अलॉटेड उसके 60 शेयर्स रहे होंगे, 6:5 प्रोरेटा का रेशियो है। तो 40 शेयर्स एक्स के और 60 शेयर्स वाई के, टोटल 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया है, तो 2000 में से 100 शेयर कम करें, 1900 शेयर्स पे 3 रुपीज, 5700 इज बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। आफ्टर दिस इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के बाद यहाँ पे फोरफीचर होगा 40 शेयर का, तो जिसके लिए नोट इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर फोरफीचर टू ईएस फर्स्ट कॉल एंड टू ईएस अलॉटमेंट एंड टू ईएस फर्स्ट कॉल, ये एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले 40 शेयर्स इंटू कॉल्ड अप अमाउंट, तो कॉल्ड अप अमाउंट है 8 रुपीज, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीचर हो रहा है, इसलिए 5 + 1 + 2 टोटल 8 रुपीज। 40 इंटू 8 इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा 320। फिर यहाँ जो क्रेडिट पार्ट है उसमें अमाउंट भरेंगे। फर्स्ट कॉल 40 शेयर 3 रुपीज पर शेयर, यानी 120 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं आया है, अलॉटमेंट का नहीं आया है 32 रुपीज, ये 32 हम लिखेंगे यहाँ पे अलॉटमेंट का। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये एसपीआर डेबिट करने का जो पॉइंट है वो खास समझना है। एसपीआर हर एक स्टेज पे 1-1 रुपया है। अब ये जो डिफॉल्टर है उसने एक्स ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं भरा है और उसके शेयर 40 रुपए है, तो 40 शेयर पे अलॉटमेंट का 1 रुपया और फर्स्ट कॉल का 1 रुपया, यानी उसने 80 रुपीज का प्रीमियम नहीं भरा है। 80 रुपीज का प्रीमियम उसने टोटल नहीं भरा है। अब सिचुएशन ये है, यहाँ पे जब हम डेबिट करेंगे तो फर्स्ट कॉल में 40 रुपए प्रीमियम है और अलॉटमेंट का 32 नॉट रिसीव्ड है, इसका मतलब 32 का ही प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है। हम यहाँ पे प्रीमियम में एसपीआर डेबिट करने में अलॉटमेंट का 40 रुपए का प्रीमियम डेबिट नहीं कर सकते। यही पॉइंट था जो यहाँ पे डिस्कस हुआ था कि जो अलॉटमेंट की नॉट रिसीव्ड अमाउंट है उससे ज्यादा एसपीआर नहीं हो सकता, क्योंकि जो नॉट रिसीव्ड है उसमें से एसपीआर को कैंसिल किया जा रहा है। दिस इज कैंसलेशन एंट्री ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विच इज नॉट रिसीव्ड। तो नॉट रिसीव्ड में जो नहीं आया है वही कैंसिल होगा ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे नॉट रिसीव्ड अमाउंट इज 32, अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड इज 32, तो प्रीमियम कैन बी कैंसल्ड इज 32 ओनली। यहाँ पे 40 रुपीज का अलॉटमेंट में प्रीमियम है 40 शेयर पे, बट 40 रुपीज डेबिट नहीं हो सकता। ये पॉइंट खास कंसिडर करना है एसपीआर डेबिट करते वक्त। तो अलॉटमेंट के 32 नॉट रिसीव्ड है और ऑब्वियसली वो 32 प्रीमियम के ही नॉट रिसीव्ड है, और दूसरे स्टेज फर्स्ट कॉल के 120 नॉट रिसीव्ड है जिसमें प्रीमियम के 40 रुपीज है,
इसलिए टोटल 32 प्लस 40 SPR डेबिट होगा 72 रुपीज से, और जो मिसिंग वैल्यू आएगी वो शेयर फोरफीचर की अमाउंट होगी 240। तो खास ध्यान रखना है, SPR में जो अमाउंट हम लिखते हैं वो नॉट रिसीव से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अलॉटमेंट नॉट रिसीव 32 रुपीज है, इसलिए अलॉटमेंट का जो प्रीमियम हम कैंसिल कर रहे हैं वो 32 ही होना चाहिए, और फर्स्ट कॉल का फुल अमाउंट नॉट रिसीव्ड है, इसलिए उसका फुल 40 रुपीज यहाँ पे कैंसिल हुआ है SPR का। उसके बाद यहाँ पे ये कैंसिल होने के बाद फाइनल कॉल ड्यू हुआ है, तो 1,0960 शेयर पे 3 रुपीज का फाइनल कॉल ड्यू हो रहा है, जिसमें 2 रुपए की फेस वैल्यू और 1 रुपए का प्रीमियम है, तो अमाउंट है 3920 एंड 1960। टोटल अमाउंट डेबिटेड विल बी 5880। उसके बाद फाइनल कॉल रिसीव करना है। अब एक्स ने तो 40 शेयर पे नहीं भरा है फर्स्ट कॉल, एक्स का तो शेयर फोरफिट हो चुका है। वाई की बात कर रहे हैं कि वाई के 60 शेयर्स पे उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा था और अब फाइनल कॉल भी नहीं भर रहा है, इसलिए उसके 60 शेयर्स कम होंगे 1960 में से, तो टोटल 1900 शेयर्स पे फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव होगा, तो बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 5700। इसके बाद उसके 60 शेयर का फोरफीचर है, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल SPR टू शेयर फोरफीचर टू ES फर्स्ट एंड टू ES फाइनल कॉल। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट भरेंगे, इसमें 60 शेयर्स और 10 रुपए की फुल फेस वैल्यू, बिकॉज फोरफीचर इज आफ्टर फाइनल कॉल, सो 600 विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट का पार्ट पहले भरेंगे, इसमें 60 इंटू 3 रुपीज का ES फर्स्ट कॉल, 60 इंटू 3 रुपीज का ES फाइनल कॉल, सो 180 इज नॉट रिसीव्ड फॉर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अब SPR ये दोनों में, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों में 1-1 रुपया SPR है, इसलिए SPR डेबिट होगा क्योंकि नॉट रिसीव्ड में अमाउंट है, तो 60 शेयर्स इंटू 2 रुपीज, 1 फॉर फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑफ final call, total 2 rupees premium is not received and will be debited to SPR, so 60 into 2 SPR अमाउंट डेबिट होगा 120, इसलिए जो डिफरेंस की अमाउंट आएगी वो शेयर फोरफीचर की होगी और वो अमाउंट है 360। इसके बाद टोटल 100 शेयर्स में से 80 शेयर्स को री इश्यू किया जा रहा है, तो 80 शेयर्स और 9 रुपीज का रेट है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा 720 से, और इक्विटी शेयर कैपिटल होगा ऑब्वियसली 80 शेयर्स एंड 10 रुपीज, इसलिए 800 रुपीज। तो 800 रुपीज के शेयर इशू हुए, री इशू की प्राइस है 720। 80 रुपीज विल बी यूटिलाइज फ्रॉम शेयर फोरफीचर अकाउंट, 80 रुपीज विल बी यूटिलाइज फ्रॉम शेयर फोरफीचर अकाउंट। लास्ट एंट्री शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, जिसके लिए हमें एक नोट प्रिपेयर करनी है। अब यहाँ पे जो 80 शेयर्स री इशू हुए हैं उसमें वाई के सारे शेयर्स इंक्लूडेड है, ऑल शेयर्स, और फोरफीचर की दोनों एंट्री सेपरेट है, यानी एक्स का जो फोरफिटेड अमाउंट है वो 240 है और वाई का फोरफिटेड अमाउंट 360 है। तो पहले y के 60 शेयर्स पे 360 फोरफिटेड अमाउंट, अब x के 40 शेयर पे अमाउंट है 240, x के 40 शेयर्स पे फोरफिटेड अमाउंट है 240, तो उसके 20 शेयर्स ही री इश्यू हो रहे हैं, तो 20 पे अमाउंट आएगा 120, 360 प्लस 120 480 इज टोटल अमाउंट फोरफिटेड ऑन शेयर्स री इश्यूड, यानी जो री इश्यू हो रहे 80 शेयर्स उस पे फोरफिटेड अमाउंट है 360 प्लस 120 यानी कि 480, एंड आउट ऑफ दिस 480 80 रुपीज इज यूटिलाइज बाय गिविंग डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इश्यू। हमने 80 रुपीज यूज की है, डिस्काउंट दिया है न्यू शेयर होल्डर को री इश्यू करते वक्त, क्योंकि री इश्यू प्राइस 9 रुपीज है, तो 80 इज डेबिटेड टू शेयर फोरफीचर। तो 480 में से 80 यूज हो चुका है, इसलिए हमारे पास जो कैपिटल प्रॉफिट बचता है आफ्टर री इश्यू ऑफ 880 शेयर्स, एंड दैट कैपिटल प्रॉफिट इज ऑफ 400, and this 400 rupees will be at last transferred to capital reserve by passing this entry, share forfeiture account debited to capital reserve 400. Thank you.